Hello, dear students. Welcome to my class Physics. Today's topic is electromagnetic waves and their common characteristics and properties. What is electromagnetic waves? According to Maxwell, the electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variations of electric and magnetic field vectors at right angles to each other, as well as right angles to the direction of wave propagations. Just look at this picture. Direction of propagation of the electromagnetic wave, and in this figure diagram it is along the x-axis. The plane of oscillations, that is the xy plane for the electric field, that means electric field vector is oscillating along the y-axis, and magnetic field vector oscillating along the z-axis. तो ये हो गया electromagnetic wave. Any electromagnetic wave, it is composed by oscillating or varying electric field and magnetic field, and these electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, and these are also perpendicular to wave propagations. फिगर डायग्राम थोड़ा देख लीजिए. इसमें जब E का वैल्यू 0 था, at the moment B also 0. When E maximum, B also maximum in the same direction. That means when E is positive, B is also positive. When E is 0, B also 0. And when B is the negative maximum, E also negative maximum. That means these two are oscillating or vibrating in the same phase. एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहा है और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम. Practically, एक electric field, oscillating electric field, it produces magnetic field, and oscillating magnetic field, it produces electric field. Electric field produces magnetic field, and magnetic field. Figure shows an electromagnetic waves propagating along x-axis. Here, electric field vector E and magnetic field vector V are vibrating along y-axis and z-axis, while the wave travels along the x-axis. Since in the propagation of electromagnetic waves, the electric and magnetic fields are transverse, that is perpendicular to the direction of wave propagations. Hence, electromagnetic waves are transverse in nature. मतलब यहाँ electromagnetic waves जो है ना transverse wave, क्योंकि जो oscillations हो रहा है both electric and magnetic field का, these oscillations are perpendicular to the directions of propagations. Therefore, it is transverse in nature. Important characteristics and properties of electromagnetic waves. Number one, electromagnetic waves are produced by accelerated or oscillating charge. The electromagnetic wave means initially जब ये सब develop हुआ था, we consider the radio waves. तो radio waves अभी भी produce किया जाता है by oscillating and accelerating charge particles. बाद में पता चला जो electromagnetic wave only जो radio waves चाहे microwaves नहीं है, infrared, next हो गया light waves, visible light, UV ray, X-ray, gamma ray, all these are belongs to electromagnetic waves, and these are produced by different way. इनिशियली जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया था तो इसको प्रोड्यूस किया गया था बाय ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स से. तो उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट था, दैट इज द हार्ज एक्सपेरिमेंट. तो हार्ज एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो इसमें हम लोग इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस भी बताए थे, और एट द सेम टाइम मार्कोनी भी बताए थे, बट मार्कोनी टेक द पेटेंट अबाउट इट. तो उसी का नाम से अभी जाना जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस पहले किए थे, that is Marconi. Next point is the waves do not require any material medium for propagations, that is electromagnetic wave that easily can pass through the vacuum. Better to say the speed of the electromagnetic waves is maximum in the vacuum. No material medium required, just like sound wave requires material medium. Without material medium, sound wave cannot propagate. But in case of the electromagnetic waves, it does not require any material medium. मीडियम होगा तो उसका अंदर में भी जाता है. These waves travel in free space or vacuum with a speed given by c equal to 1 by root over mu naught and epsilon naught, where mu naught and epsilon naught are permeability and permittivity of free space respectively. ये जो मैक्सवेल इसको by calculation निकाले थे by with the help of Maxwell's equations, एक set of 4 + 1 5 equations है वो मैथमेटिकली निकाल रहे थे. जो speed of the electromagnetic waves, that means light is also electromagnetic wave in vacuum or free space, that is c is equal to 1 by mu naught and epsilon naught. That means the
speed depends upon the electric and magnetic property of that medium. Here vacuum also one medium for the electric field and also the magnetic field. So permeability and permittivity of the free space. So as a result, we can now understand why the speed of electromagnetic wave that will different in the different medium, because the speed that depends upon the magnetic and electrical property of that medium, that is permeability and permittivity of that medium. क्यों ऐसा होता है ना? Any electromagnetic waves that is composed of both electric field and magnetic field, and obviously the values of electric field, magnetic field that depends upon the permeability and permittivity of that medium. तो इसमें हम लोग जानते हैं जो फॉर द फ्री स्पेस म्यू नॉट दैट इज 4 पाई into 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, एंड एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो इसको हम लोग यहाँ वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हम लोग मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली, इसका वैल्यू पुट करने के बाद ऑल दीज आर इन द एसआई सिस्टम। तो c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई रूट ओवर 4 पाई 8.85 into दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ 10⁻⁹ and after taking this square root and after the calculation, if you calculate with the help of the calculator, you can easily find out the value will be approximately 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और एक थियोरेटिकल वैल्यू है, मैक्सवेल थियोरेटिकल कैलकुलेशन से वैल्यू को निकाल दिए थे। The velocity of electromagnetic wave in a medium is given by, तो हम दूसरा कोई मीडियम के लिए बात करेंगे तो हम in place of the mu naught you have to write mu and epsilon naught you have to write epsilon, that is v is equal to 1 by root over mu and epsilon, and these are the absolute permittivity and absolute permittivity and permeability of that medium। तो इसके बाद हम ये जो फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो हम लोग लिख सकता हूँ तो mu that can be written in this way, mu naught into mu r is the relative permittivity and epsilon equal to epsilon naught into epsilon r, that is the relative permittivity, it is relative permeability। तो इसमें हो जाएगा रूट ओवर, हम इसको वैल्यू पुट कर दिए यहाँ भी वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग अगर 1 इसको सेपरेट कर लेते हैं, रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। तो इसका वैल्यू हम थोड़ा पहले लिख चुके हैं, दैट इज नथिंग बट द सी, दैट मींस वेयर c इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर एप्सिलॉन म्यू नॉट। तो हम लोग बोल सकता हूँ जो कितना वेलोसिटी डिक्रीज होगा that depends upon this, ये दोनों का वैल्यू 1 से, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, as a result c divided by some numbers that is more than 1, therefore v will be less than c। तो ये थियोरेटिकली कैलकुलेशन करके मैक्सवेल निकाले थे, तो ये एक रिलेशनशिप है। दैट मींस अभी हम लोग ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ किसी को तो why the speed of electromagnetic wave will be different in the different medium, because electromagnetic wave it is composed by both electrical and magnetic field, and that depends upon the permeability and permittivity of the medium through which it is passing। Number 4, in electromagnetic waves, the sinusoidal variation in both electric and magnetic fields occurs simultaneously, एक ही साथ में होता है, that means in the same phase में होता है। As a result, they attain the maximum and minimum value at the same place at the same time, that is EM waves, that is electromagnetic waves। The oscillations of electric field E vector and B vector are in the same phase, एक ही फेज में दोनों होता है, मतलब साथ साथ होता है। जब वो मैक्सिमम में भी मैक्सिमम 0 0 एक ही साथ में, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों फेज भी सेम है, लेकिन दोनों का बीच में जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू ईच अदर। एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स कितना होगा ना, इसके साथ एक स्पीड का एक रिलेशनशिप है, ये भी मैथमेटिकली निकाला गया है, जिसका वैल्यू होता है E नॉट डिवाइड बाय B नॉट इज द C, वेयर E नॉट एंड B नॉट इज द पीक वैल्यू। तो मैं पीक वैल्यू क्यों कंसीडर कर रहा हूँ ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होगा, कभी 0 भी होता है, बट एट एनी इंस्टेंट E बाई B भी आप लिखा जाए तो भी C होगा, बट हम लोग डेफिनेट इक्वेशन लिखने जाते हैं तो E नॉट बाई B नॉट लिखते हैं, क्योंकि E नॉट B नॉट कभी 0 भी होता है, 0 बाई 0 मीनिंगलेस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हम लोग E नॉट बाई B नॉट इज C लिखते हैं। एट एनी मोमेंट E बाई B ऑल्सो विल बी C। The electric field vector, point number 5, always perpendicular to the magnetic field vector in electromagnetic waves. The cross product E cross B always gives the directions of propagation of electromagnetic waves। वही बात होता है जो E cross B हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, at any moment
ये जो फर्स्ट फिगर डायग्राम ड्रॉ किए थे, ई अलोंग द वाई एक्सिस एंड बी अलोंग द जेड एक्सिस, अगर ई क्रॉस बी हम लोग करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से होता है, जो डायरेक्शन दैट विल बी द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ई क्रॉस बी एंड दैट इन दिस केस सी। और हम लोग को जस्ट चेंज कर ले, मान लीजिए अगर ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑसिलेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस एंड बी अलोंग द वाई एक्सिस, अगर ई क्रॉस बी करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली मिल जाता है, एंड इन सच ए केस द डायरेक्शंस ऑफ वेव विल बी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग ये जो ड्रॉ करते हैं ये तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन इन दिस वे सी का डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ई क्रॉस बी। हम लोग जो मर्जी नहीं कर सकता हूँ, एक फिक्स रूल में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स entirely on the electric and magnetic properties of the medium in which these waves travels and is independent of amplitude of the field vectors. The velocity of magnetic wave, electromagnetic wave in डायलेक्ट्रिक इज लेस देन द सी, सी के वैल्यू से कम होगा, कितना होगा हम पहले बोल चुका हूँ। एक पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड क्यों होता है और किसको को डिपेंडेंट है, इतना स्पीड हो जाएगा दूसरा मीडियम में रूट ओवर डिवाइड बाय दिस। इन फ्यूचर हम लोग इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये भी डायमेंशनलेस यूनिटलेस दोनों रिलेटिव की बात है, तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। इन फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे लाइट में, तो इट इज nothing but the reflective index of that medium. That means reflective index of that medium also depends upon the relative permeability and relative permittivity of that medium. Point 7. The electromagnetic waves carry energy which is divided equally between electric field and magnetic field factors. इसमें बात एक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ एनर्जी होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। इन द फ्री स्पेस हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एट एनी मोमेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला था, कहीं भी कोई पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसका डेंसिटी होता है। हम लोग कहीं से भी फील्ड आ जाए, इसमें हम लोग देख चुके हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटी से हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, उसमें हम लोग देख चुके हैं फील्ड का ओरिजिन कुछ भी हो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिपेंड्स अपॉन द इट नॉट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस और अदर फैक्टर्स। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी होगा। और इन द सेम टाइम हम लोग जब इसमें सोलिनॉइड पढ़े थे, एनर्जी विद इन द करंट कैरिंग सोलिनॉइड, दैट मीन्स इंडक्टर का अंदर में करंट जब होता है तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चलते वहाँ पर भी एनर्जी स्टोर होता है, तो वहाँ एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, हाफ इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो ये जो है कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के चलते यहीं पर एनर्जी होता है। व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नथिंग मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी डेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो भी एनर्जी डेंसिटी होगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ, that is composition of both electric field and magnetic field। तो जहाँ पर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडली वेरी होता है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ एनर्जी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी होगा। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी वेव्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, जैसे लाइट आ रहा है तो उसका मतलब लाइट का एनर्जी है। तो ये बात होता है एनर्जी किसके पास है और क्यों एनर्जी है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एनर्जी इक्वली बांटा हुआ रहता है, divided equally between electric fields and magnetic field factors. In vacuum, the average electric energy density UV and average magnetic energy density UV due to the static electric field E and magnetic electric field V, which do not vary with time, are given by। मतलब हम लोग ऑलरेडी जो एक फॉर्मूला निकल चुके हैं, इसमें बताया गया है, जो जहाँ पर टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर V भी कांस्टेंट है तो इतना होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनसोइडली, ये तो कांस्टेंट के लिए था जो फॉर्मूला था, तो इसमें तो ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो एनर्जी क्या होगा with the space and time t, the above expression will be valid for electromagnetic waves E and B are replaced by their RMS value। इन सारे केस हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का RMS वैल्यू चाहे इफेक्टिव वैल्यू लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी RMS वैल्यू चाहे इफेक्टिव वैल्यू लेंगे। Therefore, UE that is a half into epsilon naught E RMS square plus half into epsilon naught, इसको हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है
तो हम लोग क्या लेंगे, उसका इफेक्टिव वैल्यू लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे, तो कितना होगा, हाफ इंटू, इन प्लेस ऑफ ई हम लोग लिखेंगे ई आर एम एस स्क्वायर, and that is half into epsilon naught E RMS, that means peak value जो होता है divided root over 2, that is the RMS value होता है, तो उसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा ना, 1/4 epsilon naught E naught स्क्वायर। मतलब इसमें जो पीक वैल्यू होता है that is E naught स्क्वायर होगा, तो 1/4 epsilon naught E naught स्क्वायर होगा। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो एनर्जी डेंसिटी होता है UV हम लोग लिख रहा हूँ, in this case also we are considering the RMS value of the B, so half into V RMS square divided by mu naught, तो हाफ इंटू बी नॉट स्क्वायर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दिए हैं, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर, तो 2 आ गया नीचे, तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। देखो दोनों, इसमें भी 1/4 आ गया, इसमें भी 1/4 आ गया, और ये दोनों हम इक्वल प्रूव कर देंगे। दैट मीन्स ये दोनों जो इक्वली बांटा हुआ एनर्जी, ये भी हम प्रूव कर देंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। कैसे ना, यू बी इक्वल टू, मान लीजिए हमको मिला है बी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, तो 2 म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ई आर एम एस स्क्वायर बाई सी, क्योंकि बी ई बाई बी दैट इज द सी, तो उसका होल स्क्वायर इसमें आ गया, क्योंकि बी आर एम एस इज द सी आर एम एस बाई सी। इवन इफ इससे भी हम ले सकते थे ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई सी, ये भी लिख सकते थे, इतना का जरूरत नहीं था। फिर हम लोग इसको वैल्यू पुट कर दिए हैं, अल्टीमेटली वही किए हम लोग बाद में भी। जैसे मान लीजिए हाफ इंटू इसमें ई आर एम एस बाई सी किए हैं, तो ई आर एम एस 1/2 म्यू नॉट है, इसमें ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू होता है 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा पहले हम लोग लिख चुके हैं, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि सी का वैल्यू होता है दिस वन, हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर भी। तो उसके बाद क्या होगा ना, 1/2 म्यू नॉट, इसमें देख लीजिए ऊपर में चला गया है, इंटू आर एम एस स्क्वायर, तो इसमें म्यू नॉट तो कट गया, तो कितना हो गया ना, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, दैट इज द यूवी। दैट मींस ये दोनों जो एनर्जी ई हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, हाफ इंटू बी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ये दोनों जो इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, जो एनर्जी जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मिलकर टोटल एनर्जी कितना होगा। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कितना एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो एवरेज की बात करें तो दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज द यूई प्लस यूवी, दैट इज आइदर 2 इंटू यूवी और 2 इंटू यूबी होगा, इट इज द यूबी। तो इसमें हम लोग 2 इंटू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 2, इसमें बी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो इसमें हम लोग इसका बदल यहाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, हाफ हाफ कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू बी आर एम स्क्वायर बाई म्यू नॉट लिख सकते हैं। इसका बदल हम लोग लिख सकता हूँ ई आर एम स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई 2 और बी नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स हाफ इंटू आइदर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और हाफ इंटू बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इट इज दोनों मिला के जो टोटल एनर्जी, एक एक का नहीं, एक एक के तो लिए थे, इसमें 1/4 था, 1/4 था, अरे 1/4 को डबल कर दीजिए, बात एक ही, इतना कहानी बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब इक्वल है तो इसका डबल कर दीजिए, चाहे इसका डबल कर दीजिए, जो होगा दैट इज द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी सम ऑफ बोथ, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के लिए। पॉइंट नंबर 8, the electric vector is responsible for the optical effect of an electromagnetic wave and is called light vectors। जैसे ऑप्टिकल वेक्टर मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं विद हेल्प ऑफ लाइट, विद हेल्प ऑफ लाइट देखते हैं, तो लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो हम लोग को देखने का जो सेंसेशन, दोनों में से कौन प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस करता है, हम लोग जो देखने का जो सेंसेशन है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। Therefore generally we are saying the electric field vector is the light vector of the electromagnetic waves. Number 9, the electromagnetic waves being uncharged are not detected by electric and magnetic fields। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, therefore it cannot be detected by electric magnetic field, that means it cannot be detected by electric field or magnetic field। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसका। इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 10, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंटेंसिटी की बात किया जाए एट एनी पॉइंट,
तो नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव का इंटेंसिटी होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एट एनी पॉइंट डिफाइन होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब कहीं भी एनर्जी आ रहा है, अभी सनलाइट भी आ रहा है सपोज, तो पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पर सेकंड नॉर्मली जा रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट मींस इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एरिया हम रखेंगे परपेंडिकुलर नॉर्मली नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, उसके साथ पर एरिया में कितना एनर्जी जा रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी क्रॉस करके आ रहा है, चाहे इंसिडेंट हो रहा है। अब जैसे बोला दैट इज द इंटेंसिटी, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव u क्रॉसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट p normally in time delta t is the energy of wave contained in a cylinder of length c into delta t and area of cross section a। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए इसका एक सिलिंड्रिकल ले लेते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशंस, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो डेल्टा टाइम में जो पाथ होता है दैट इज द सी इनटू डेल्टा टी, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज द सी इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में जो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम होगा, और इसमें जो है उसमें कितना एनर्जी होगा मान लीजिए, तो एनर्जी होगा उसमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, energy of electromagnetic wave u crossing the area of cross section at p normal in time delta t, मतलब p से delta t टाइम में कितना किया, डेल्टा टी टाइम में अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन लेकर के एक सिलिंड्रिकल कोई सिलेंडर कंसीडर करें, इसका अंदर में जितनी एनर्जी इतनी एनर्जी एक सेकंड डेल्टा टी टाइम में पास हो गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अंदर में जो एनर्जी है, तो इसका वॉल्यूम कितना होना सी इंटू डेल्टा टी इंटू ए, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होना यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होगा एट पॉइंट पी, तो हम लोग डिवाइड बाय टाइम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो डिवाइड बाय क्योंकि हम लोग डेफिनेशन क्या था एनर्जी पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम हम लोग ए और डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ए और डेल्टा टी दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया एवरेज इनटू सी, यानी एक अनदर एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया है, जो इंटेंसिटी क्या होता है ना एनर्जी एवरेज इनटू स्पीड ऑफ द वेव, तो इसमें एवरेज एनर्जी के वैल्यू हम लोग जानते हैं दैट इज द आइदर हाफ इनटू एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर और हाफ इनटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट, तो आप इसका टर्म में लिखिएगा तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी होगा, आरएमएस कीजिएगा तो इसमें आरएमएस स्क्वायर हो जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो भी हम लिख सकता हूँ, मतलब कोई वेव का इंटेंसिटी का इतना सारा फॉर्मूला हो गया है, इट इज द फॉर्मूला, इधर ए लिख सकते हैं, अगर ई नॉट पता है आरएमएस पता है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, बी नॉट पता है तो हम ए हिसाब से लिख सकते हैं, इन द वैक्यूम की बात कर रहा हूँ तो इसलिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किया गया, और बी आरएमएस का वैल्यू पता है तो हम एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये नॉट ऑन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम ये एप्लीकेबल होगा, चाहे लाइट वेव हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे माइक्रोवेव्स हो, सबके लिए। अब एक मोमेंटम रेडिएशन प्रेशर ऑफ EMW electromagnetic waves. The electromagnetic wave has a linear momentum as well as energy. इसका एनर्जी भी है, एक linear momentum भी है. That is why electromagnetic wave exert radiation pressure on the surface of object on the wall it falls. तो अब कहीं भी रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इधर फोर्स होगा, वो मोमेंटम चेंज होगा, अभी वहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है तो मोमेंटम चेंज डबल हो जाएगा, और वहाँ पर मान लीजिए रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो रहा है तो मोमेंटम चेंज जैसे m इंटू पी हो जाएगा, जो टाइम पर यूनिट टाइम जितना होगा मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज द प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लीनियर मोमेंटम है एनर्जी भी है, तो एक जहाँ पर इंसिडेंट हो तो वहाँ प्रेशर भी देते हैं, हम लोग ओरिजिनली इंटेंसिटी इतना कम है, मोमेंटम इतना कम है जो ऑलवेज हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ पर मान लीजिए हो सकता है जो टीवी टावर है जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, चाहे मोबाइल टावर का आसपास भी बोला जाता है, जो कुछ रेडिएशन प्रेशर हम लोग फील कर सकता हूँ, यहाँ पर बहुत इंटेंसिटी हाई है, देखा जाए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी यू is propagating with speed c, then linear momentum of the electromagnetic wave is given by, देखिए यहाँ जो linear momentum की बात होता है u is the energy, p is the u by c, in this case energy it is not the kinetic energy,
जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर से E इक्वल टू और U इक्वल टू mc स्क्वायर इन दिस केस mc इज द P इनटू C। तो P कितना होगा U बाई C होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा। ये नॉर्मल पार्टिकल का जो है मोमेंटम उसका फॉर्मूला नहीं है। उसमें तो काइनेटिक एनर्जी की बात किया था, इसमें ओनली एनर्जी की बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते, ओनली एनर्जी, फोटोन का एनर्जी बोला जाता है इसमें। तो एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर हिसाब से कितना होगा, नहीं E इक्वल टू मतलब U इक्वल टू mc स्क्वायर, mc हो गया, P हम कंसीडर करते हैं P इंटू C, तो P कितना होगा U बाई C। द फोर्स एक्सर्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इसमें ये रेडिएशन प्रेशर जो है ना, इट इज, इसमें हम लोग बोलते हैं ये हो गया मोमेंटम जो है, मोमेंटम देखा जाए कितना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स एरिया, तो रेडिएशन प्रेशर कितना होना, फोर्स डिवाइड बाय यूनिट एरिया होगा। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम बाय एरिया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय एरिया, नीचे टाइम आ जाएगा, मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा, दैट इज द प्रेशर। The incident electromagnetic wave is completely absorbed by a surface. It delivers energy U and momentum U by C to the surface area A in time delta t. Then the radiation pressure is, so P divided by A into delta t. अब P कितना U by C, तो U by C नीचे हो गया है U by A into delta t, नीचे C, it is nothing but the I, मतलब इंटेंसिटी डिवाइड बाय C, दैट इज द प्रेशर। एक रिलेशनशिप मिल जाता है, रेडिएशन प्रेशर इज द इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा स्पीड तो सम के लिए सेम ही होता है, जितना जो प्लेस में जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उसमें इतना ही रेडिएशन प्रेशर हमको मिलेगा। नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग जो चारों तरफ रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी इतना नहीं है जो हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन ये बताया जाता है कहीं पर जो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वहाँ पर एक वेरी लार्ज इंटेंसिटी जहाँ निकल के जो स्कैटर होते जा रहा है चारों तरफ, तो वहाँ पर जो रेडिएशन प्रेशर हम लोग भी फील कर सकता हूँ रेडिएशन प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डिवाइड बाय C, where I the intensity of EM wave, and that is the U divided by A into delta T, and C is the speed of electromagnetic wave। ये तो हम लोग from the definition मिला था, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया इज द नॉर्मल पर यूनिट टाइम, तो उसी हिसाब से हम लोग I by C मिल गया है। इसमें विजिबल लाइट के लिए करीब ये होता है हम लोग जो है 7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही कम है इसलिए हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन है। All the electromagnetic waves of different electromagnetic waves of different radiations move with the same speed in vacuum, but they move with different speed in medium other than vacuum। मतलब जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, उसमें क्या होता है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, एंड विजिबल लाइट के बाद हम लोग को मिलता है यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, तो ऑल दीज हैव सेम स्पीड इन द वैक्यूम। लेकिन जब दूसरा मीडियम में चल जाते हैं तो सबका स्पीड बराबर नहीं होता है, जिसको वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड इतना ही ज्यादा होता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग का इन फ्यूचर उसको भी पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर भी पढ़ेंगे। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर होता है जो E क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। इसका मतलब होता है गिव्स नॉर्मल एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है E क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नॉट, ऐसा यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो E क्रॉस बी जो हम बात कर रहा हूँ, ये पहले भी देख चुके थे, जो E क्रॉस बी दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई कोई बोल देते हैं जो दैट E क्रॉस बी द पॉइंटिंग वेक्टर, बट नॉट सो। कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलेगा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that is along the pointing vector, and what is the pointing vector, that is E cross B divided by mu naught। ये हो गया हम लोग का आज का जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।